students. You all are welcomed in Zahra's classes. Myself, Dr. A. Zahra. Today I have come here with a topic with a poem, A Tiger in a Zoo. This poem is written by George Leslie Norris. It is taken from your book First Flight. So students, let's start with the poem. But before starting the poem, let me explain you the things which will be covered in this particular lecture. We are going to cover about, we will study about the author. The poem will be read with the explanation and as well as explanation of literary devices that are used. But before starting the poem and about the poet, let me give you the central idea of the poem. इस पोएम में पोएट ने क्या कहना चाहा है और क्या उन्होंने मैसेज दिया है. टाइगर, as the name suggests, a tiger in a zoo, which means the condition of a tiger in a zoo is explained over here along with another condition. एक कंडीशन और भी इसके साथ पैरेलल, दो कंडीशंस को पोएट ने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, और वो कंडीशन है व्हेन द टाइगर इज इन द जू एज वेल एज व्हेन द टाइगर इज आउट ऑफ द जू. बच्चों, टाइगर जो है एक बहुत प्राउड और बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है और इतना पावरफुल और अनटेमेबल एनिमल. अगर उसको आप जू में रखते हैं तो उसकी क्या दशा होती है. इस तरह के जानवर या कोई भी जानवर अपने नेचुरल या वाइल्ड हैबिटेट से अगर हट जाता है या उसको कहीं कैद कर लिया जाता है तो उसका जो नेचर होता है या उसका जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है. और अगर ये खुले में होता है, नेचुरल हैबिटेट में होता है, अपने वाइल्ड हैबिटेट में होता है, तो इसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वो अपना खाना खुद से तलाश लेता है. आप सोच सकते हैं कि जू में जब हम किसी जानवर को कैद करते हैं तो उसको आप समय पे खाना प्रोवाइड करते हैं, बट यही जानवर जब खुले में होते हैं तो ये खुद अपनी जिम्मेदारी से अपने बलबूते पे ये अपने प्रे को हंट करते हैं, अपना खाना वो खुद तलाशते हैं. तो यहाँ पे एक टाइगर की व्यथा बताई है और इसके माध्यम से पोएट ने हमें ये भी बताने की कोशिश की कि क्या होता है जब इस तरह का एक प्राउड और पावरफुल जानवर जो है वो अगर उसको अपने एक जू में कैद कर लिया. क्योंकि हर जानवर को, हर एक प्राणी को अपनी आज़ादी उतनी ही प्यारी है जितनी कि हम इंसानों को. सो लाइक ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, टाइगर टू लव्स एंड वैल्यूज इज फ्रीडम. और जब उसको इसकी फ्रीडम छीनी जाती है और उसको जू में कैद किया जाता है तो अपना एंगर, अपना हेट्रेड वो जो है उस केज के अंदर घूमते टहलते दिखाता है. और एक मैसेज पोएट ने इसमें ये भी देने की कोशिश की है कि ह्यूमन अपना प्रोग्रेस तो कर सकता है, बट दिस प्रोग्रेस शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनी नेचुरल हैबिटेट्स और एनी एनिमल, एंड मोस्टली एनिमल्स लाइक टाइगर. So let us start with the poem, students. लेकिन उससे पहले first we will deal with the poet, about the poet. So George Leslie Norris was a prize-winning Welsh poet and short story writer. He was a very short story writer, as well as he taught at academic institution in Britain and United States. He is also considered as one of the most important Welsh writer of the post-war period. पोस्ट वॉर पीरियड यानी वॉर के बाद के पीरियड में ये एक बहुत मशहूर राइटर बने और इनका जो लिटरेरी पब्लिकेशंस थे उसमें बहुत सारे इन्होंने प्राइजेस जीते हैं. हिज लिटरेरी पब्लिकेशंस हैव won many prizes for him. In addition to poems and short stories, he also published translations, biographies and reviews. Apart from poems and short stories, he also published translations as well as biographies. Now publications, his famous publications were Finding Gold, collected poems, collected stories of Leslie Norris, Holy Places, A Tiger in the Zoo, which we are going to read today. And amongst the awards, his work have won numerous awards including Colmondeley Poetry Prize,
the David Hingham Memorial Prize, the Catherine Mansfield Memorial Award, the AML Award for Poetry in 1996. In 1996. Leslie is a fellow of Royal Society of Literature and of Welsh Academy. So this was all regarding the poet George Leslie Norris. He was born in 1921 and he died in 2006. So coming up with the style as well as as we came along with the main central idea of the poem, we will start reading the poem and I'll explain you each and every paragraph as a stanza of the poem. Okay, so we will read the poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where pump deer pass. He should be snarling around houses, at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. So this poem is again the central idea. We came across the central idea. Now we will see the style. As you can see, I have read the 3 stanzas of the poem. जो 3 stanzas हैं, this poem is having 5 stanzas and each stanza is made up of 4 lines. The rhyming scheme is A B C B. A B C B, as this will be discussed later also. And this poem has 2 distinct settings. In one setting, it is shown that inside a zoo the tiger is put, and in second setting the tiger is imagined in a natural wild habitat. Here the tiger is also personification is used as tiger is called as he and not it. So here we will see various things, and again the tense tone represents the hidden rage of the tiger also. So now we will discuss each and every stanza. So first we will see first stanza, that is, in a rage he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो बच्चों यहाँ पे पहले स्टेंजा में बताया ही स्टॉक्स के माने फॉलो या मूव करना. इन हिज विविड मीन्स ब्राइटली कलर्ड. ओके, ब्राइटली कलर्ड स्ट्राइप्स. आपने देखा होगा स्ट्राइप्स जो हैं वो जो टाइगर के बॉडी पे होते हैं, जो उसकी धारियाँ होती हैं, उसको स्ट्राइप्स कहते हैं. So in this poem, in this stanza, the poet describes he describes the appearance of the tiger when it is put inside the zoo. जब हम टाइगर को जू में डाल देते हैं, जब एक टाइगर को जू में डाला गया तो उसका किस तरह का अपीयरेंस था उस जू के अंदर, इस स्टैंजा में पोएट ने बहुत अच्छे से बताया है. और अकॉर्डिंग टू पोएट ही सेज दैट द टाइगर मूव्स अप डाउन ऑफ द केज, ही मूव्स टू एंड फ्रो इन द केज, एंड अगेन द स्ट्राइप्स जो हैं, जो इसकी जो स्ट्राइप्स हैं, जो इसके शरीर के ऊपर जो धारियां हैं, वो और ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड तरीके से नज़र आती हैं, बहुत क्लियरली नज़र आती हैं, क्योंकि उसके कोट के ऊपर वो डार्क कलर जो है वो जू के अंदर और ज़्यादा कलर्ड और ज़्यादा क्लियर नज़र आता है. और यहाँ पे बताया है कि टाइगर जो है बहुत फ्यू स्टेप्स ले रहा है, क्योंकि ये एक बहुत फ्यूरियस जानवर है. जब ये जंगलों में होता है, ये अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, तो इसके पास बहुत बड़ा एक स्पेस होता है मूवमेंट के लिए, लेकिन केज के अंदर वो कैद है, तो बहुत फ्यू स्टेप्स में ही वो अपने मूवमेंट को ख़त्म करता है, क्योंकि वो जो केज है, जो जू है, उस जू के अंदर जो है जगह जो है उतनी ही है और उतनी ही जगह को वो यूज़ करता है अपने मूवमेंट के लिए. Then tiger walks quietly on the pads of velvet quiet in his quiet rage. तो ये अपने जो pads इसमें बताए हुए हैं, pads यानी जो नीचे जो उसके paw होते हैं, उसके पैर के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको pads कहते हैं, जो सॉफ्ट होता है. तो यहाँ पे बता रहा है कि द टाइगर जो है बहुत क्वाइटली मूव करता है.
क्यों उस केज में बहुत क्वाइटली मूव करता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक जो ज़मीन है जो केज की, उस पे उसके जो पैड्स हैं, जो पावर्स हैं, वो बहुत वेलवेटी हैं और उसके रखने से बहुत स्मूथ मूवमेंट उसका होता है, जिससे कि उस तरह की कोई भी फ्यूरियस आवाज़ नहीं आती है। और वो टाइगर जो है उस ज़ू के अंदर बहुत फ्यू स्टेप्स में बहुत स्मूथली वो वॉक कर रहा है उस केज के अंदर। बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस को वो कवर कर रहा है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स को ले रहा है। लेकिन इन सब के दौरान इन हिज क्वाइट रेज, रेज का मतलब होता है एंगर। यहाँ पे टाइगर जो है, यहाँ पे दो चीज़ें बताएगी, क्वाइट रेज, क्वाइट भी है और गुस्से में भी है, एंगर भी है, बिकॉज द टाइगर इज इन फुल एंगर। और उसका ये गुस्सा जो सप्रेस्ड है, उसकी खामोशी में सप्रेस्ड है, बहुत क्वाइट है लेकिन वो गुस्से में भी है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि वो केज के अंदर है और वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो बताया गया, स्टैंजा में जो बताया गया, वो टाइगर का जू के अंदर उसका किस तरह का अपीयरेंस है, उस चीज़ को पोएट ने इसमें डिस्क्राइब किया है। नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड स्टैंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। यानी कि यहाँ पे इस स्टैंजा में अब पोएट ने जो बताया है वो उस टाइगर के बारे में बताया है जो जू के बाहर है। मतलब हियर द पोएट इमेजिन्स एन अनदर लाइफ फॉर द टाइगर अदर देन द जू। ये दूसरी लाइफ है टाइगर की जो जू के बाहर है। Here the another life of tiger is imagined apart from the zoo life। यहाँ पे पोएट जो है इस सेकेंड स्टैंजा में जो टाइगर है उसकी दूसरी लाइफ या दूसरे फॉर्म ऑफ लाइफ को यहाँ पे इमेजिन करते हैं। और वहाँ पे ये बताते हैं कि जो टाइगर अगर ये जू में कैद नहीं होता तो ये टाइगर जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, अपने वाइल्ड फॉरेस्ट में होता। और यहाँ पे पोएट बताते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उस टाइगर के लिए, और वो बहुत आराम से मूव करता, और क्लियर डे लाइट में बहुत आराम से वो मूव नहीं करता, डार्कनेस में छुपा रहता कहीं। और यहाँ तक कि जो शैडोज ऑफ ट्री जो है, यहाँ पे कहीं ही शुड बी लर्किंग यानी हिडन, कहीं छुपा होता। शैडोज यानी ट्री का जो शैडो होता है, जो पेड़ के पीछे कहीं छुपा होता, और या तो फिर लंबी घास जो होती है, ग्रास होती है, वहाँ पे स्लाइड कर रहा होता। ठीक है। और ये बताने की कोशिश पोएट कर रहे हैं कि किस तरह से वो एक नेचुरल हैबिटेट में, जब वाइल्ड लाइफ में, अपने वाइल्ड जोन में, वाइल्ड रीजन में वो रहता, तो किस तरह से वो अपने आप को शैडो, पेड़ों के शैडो, ट्रीज़ के शैडो के पीछे छुपा के रखता, या फिर वहाँ पे छुपा बैठा रहता, बड़ी बड़ी घासों के पीछे बैठा रहता, जिससे कि वो अपने प्रे को, अपने शिकार को वो पहचान सके, डिटेक्ट कर सके उसके मूवमेंट को। ठीक है। यहाँ तक कि किस तरह के शिकार को यहाँ पे बताया पोएट ने, वो एक, या तो फिर टाइगर कहाँ बैठता, जाके वाटर होल के पास। वाटर होल यानी एक ऐसा पानी का सोर्स जहाँ फॉरेस्ट के मैक्सिमम एनिमल्स जो हैं, जो जानवर हैं, वो पानी पीने के लिए आते हों किसी एक आफ्टरनून में। और इस वाटर होल के पास वो वेट कर रहा होता, और किसी एक फैट डियर, यहाँ पे प्लम्प यानी फैट डियर के आने का इंतज़ार करता, कि अगर वो फैट डियर आता तो उसको वो अपना शिकार बनाता। और यहाँ पर वो इस आशा से बैठता कि किसी तरह से एक कोई अच्छा जानवर उसे मिले, अच्छा शिकार मिले, जिससे कि वो अपनी एक हैवी फेस्ट कर सके। तो इस स्टैंजा में पोएट ने एक टाइगर की जो नेचुरल लाइफ है उसको यहाँ पे डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइगर को जू में कैद होते हुए जब उन्होंने देखा तो ही वॉज फिल्ड विथ पिटी। उनको बहुत तकलीफ हुई कि एक इस तरह से खुले में घूमने वाला पावरफुल एनिमल जो है किस तरह से एक छोटे से जू में, केज में कैद है। Then students, coming on to the third stanza, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। इस स्टैंजा में
in this stanza, the poet says that even though he would prefer the tiger to live in the wild, it's not as if it would lose all touch with human civilization. यानी ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक जंगली जानवर जो होता है ज़रूरी नहीं है कि वो जंगल में रहता है तो ह्यूमन सिविलाइजेशन से या ह्यूमन के टच में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब जो है बहुत सारे जंगल जो हैं वो शहरों में तब्दील हो गए हैं, लोगों के रहने की जगह बन चुके हैं। तो यहाँ पे जंगलों में और लोगों के रहने की जगह के बीच की जो फासले हैं, वो जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, जिससे वाइल्ड लाइफ भी ह्यूमन के टच में है। ये पोएट ऑल्सो इमेजिन्स दैट टाइगर जब अगर उसको कोई प्रे नहीं मिलता है, उसको कोई शिकार नहीं मिलता है, व्हाट द टाइगर विल डू इन दैट केस, if he failed to find any prey, in that case from his natural habitat the tiger will growl and he will come near the edge of the jungle. एज ऑफ द जंगल क्या होता है? जंगल का जो आखिरी छोर होता है, वहाँ से गांव या शहर शुरू होता है। तो अपने शिकार की तलाश में अगर उसको नेचुरल हैबिटेट में कोई शिकार नहीं मिलता है तो वो इस तरह से एज ऑफ द जंगल में आता है। ठीक है, और कैसे आता है? स्नार्लिंग में एक एंग्री वार्निंग साउंड, वो वार्न करते हुए आता है। और वहाँ पे वार्निंग के साथ साथ ही वुड शो हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स यानी जो दांत होते हैं उसके नुकीले, और अपने क्लॉज जो अपने जो पंजे होते हैं उसको भी वो बहुत अच्छे से दिखाते हुए आएगा, मतलब उसको अनकवर करेगा। बेयरिंग यानी अनकवर्ड, मतलब अपने जो मुंह के जो नुकीले दांत हैं, जो फैंग्स हैं, वो दिखाते हुए अपने पैर के पंजों को वो ये दिखाते हुए आएगा और इस तरह से वो लोगों को टेरराइज करेगा। he would scare the inhabitants of that village. He will try to scare, डराने की कोशिश करेगा और इस तरह से वो अपना एक टेरर कायम करेगा विलेजेस पे। यहाँ पे पोएट ये भी बताता है कि अगर हमने नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया तो हम एक तरह से उनको फोर्स करते हैं कि वो वाइल्ड हो जाएं और वो विलेज की तरफ आए या हमारे ह्यूमन आबादी की तरफ आए, ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरफ आए, ताकि वो अपना खाना वहाँ से ढूंढ सकें। तो यहाँ पे कई मैसेजेस जो हैं पोएट जो दे रहा है कि सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ जो है वो एक इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। अगर हमने उन्हीं को डिस्टर्ब किया तो हमने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया। दूसरा चीज़ ये है कि वाइल्ड लाइफ तब तक हार्मफुल नहीं होता जब तक कि हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते। जहाँ उनको डिस्टर्ब हमने किया, ह्यूमन ने उनको कहीं से डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू किया, तो वो भी हमारे लिए एक कहीं ना कहीं थ्रेटनिंग बन जाते हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट मैसेज इसमें पोएट ने ये दिया है कि आज़ादी सबको प्यारी है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग को आज़ादी प्यारी है, उसी तरह से हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, हर लिविंग बीइंग को अपनी आज़ादी प्यारी है, चाहे वो जंगल का खूंखार टाइगर ही क्यों ना हो। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, दिस स्टैंजा इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्टैंजा। बट ही इज लॉक्ड इन a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो यहाँ पे कंक्रीट का मतलब है वो बिल्डिंग या वो ब्लॉक या वो जगह जो सीमेंट या बालू पानी से बनी होती है। तो इस स्टैंजा में फिर से पोएट जो है टाइगर का एक ऑल्टरनेटिव लाइफ को इमेजिन कर रहे हैं और उसके रियल जगह पे आते हैं जहाँ पोएट ने उनको एक केज में देखा था, एक स्मॉल कंक्रीट सेल में देखा था, जू में देखा था, जैसे एक प्रिजनर एक जेल में कैद होता है। तो यहाँ पे इस स्टैंजा में बता रहा है कि जो इतना पावरफुल जानवर है वो कहाँ पे है, वो एक कंक्रीट के पीछे लॉक्ड है। और इसका मतलब क्या है कि वो एक प्रिजनर की तरह वहाँ पर कैद है। और इससे क्या हो रहा है कि उसकी बहुत शक्तिशाली होने के बाद भी वो उस बार के पीछे है, उस कैद में है वो। और इसकी वजह से ये टाइगर जो है ये उस केज में टहलता तो है, लेकिन इसके पास जो है किसी के पास वो ध्यान नहीं देता। उस बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, भाई ज़ू है तो ज़ू में लोग जानवरों को देखने आते हैं, लेकिन वो अपने गुस्से में है, वो अपने पावर को कहीं दिखा नहीं पाता है। और इस फ्रस्ट्रेशन में वो क्या करता है कि वो द टाइगर पेज नो अटेंशन टू द विजिटर्स,
यहाँ पे कोई भी विजिटर को अटेंशन नहीं दे रहा है, इग्नोर करता है, वो अपने स्टॉक कर रहा है, अपने केज में ही, जू में ही मूव कर रहा है छोटी सी जगह में, लेकिन वो बिल्कुल केयरलेस हो रहा है कि उसको कोई विजिटर देख रहा है, उसको कोई स्पेक्टेटर देख रहा है आके, और वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता है। और इंस्टेड ऑफ दिस द टाइगर वेरी स्लोली एंड साइलेंटली इट मूव्स इन द केज विदाउट डिस्टर्बिंग एनी ऑफ द ह्यूमन फॉर्म्स। सब लोग देखते हैं, लेकिन अगर वही ये टाइगर खुले में होता तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग खुले में उसके सामने नहीं जा सकते थे। यहाँ पे वो अपने पावर को उसने कंसील कर लिया है उस जेल के पीछे, और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी एक्सप्रेशन के टाइगर जो है केवल उस कैद में अपने आप को उस कैद में महसूस करता है और उस जू में घूमता है। नाउ कमिंग ऑन टू लास्ट स्टैंजा, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So in this last stanza, the poet describes about the daily routine of the tiger. क्या डेली रूटीन है? अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि टाइगर जो है वो बहुत परेशान है। वो जो लास्ट वॉइस जो रात की होती है, रात के समय में जो पेट्रोलिंग होती है जू में, कि लोग आके चेक करते हैं जू के अथॉरिटी कि जू के अंदर कोई गेट तो नहीं खुला रह गया, किसी जानवर के पास कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं है, या बहुत सारी चीज़ों को जब चेक करने के लिए गाड़ियाँ पेट्रोलिंग पर होती हैं, तब ये आखिरी आवाज़ वो रात में सुनता है, क्योंकि पूरे दिन जो टाइगर है वो रेस्ट नहीं कर पाता है, और वो समय होता है रात में जब वो साइलेंट होता है सारी चीज़ें, और उसको बहुत आसानी से पेट्रोलिंग की आवाज़ सुनाई देती, कारों की पेट्रोलिंग की आवाज़ सुनाई देती है। और रात में भी इस टाइगर को नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इट स्टिल स्टेज अवेक, और यहाँ पे वो अपने घर जाने की बात को, वापस पलटने की बात को भी सोचता है, और उसके बाद उसे ये लगता है कि वो अपनी जो ब्रिलियंट आँखें हैं, जो अपनी ब्राइट आईज़ हैं, उससे वो क्या देखता है? तारों को देखता है। उसे ये लगता है कि ये वही तारे जो हैं, जो ये वही स्टार्स हैं, जब वो किसी जंगल में होता है तो वो सेम वही तारे हैं, वही स्टार्स हैं जिनको वो जू से भी देख रहा है। और ऐसा लगता है कि ये टाइगर जो है ये हेवन में या ऊपर गॉड से ये प्रश्न पूछता है कि वो इस कैद में क्यों है, उसको क्यों नहीं वो अपनी जगह पर है, या वो क्यों नहीं अपने जंगल में है। तो इस तरह से जो पोएट है उसने डिस्क्राइब किया हुआ है, और उसकी बेचैनी को डिस्क्राइब किया हुआ है इस स्टैंजा में। और वो हमेशा ये एक चीज़ वो देखता है, रात में ही वो फ्री होता है, रात में वो बहुत आराम से तारों को देखता है, और अपनी आज़ादी के जगह और समय को भी याद करता है, और गॉड से ये क्वेश्चन भी मन मन पूछता है कि वो यहाँ पर इस कैद में क्यों है। तो यहाँ पर पोएट ने एक व्यथा बताई है, एक ऐसे जानवर के बारे में खुद इमेजिन करके कि वो किस तरह की फीलिंग उसको एक कैद में आ रही होगी। पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर, सबको अपनी आज़ादी उतनी ही प्यारी है, और इंसान को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए किसी भी नेचुरल बीइंग्स को कैद में नहीं रखना चाहिए। So this was the gist of the poem. Now students, coming on to the next part, that is explanation of literary devices. I will explain you stanza wise. So here in this stanza you see he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो here the rhyming scheme जो यहाँ पे आपको दिख रही है, जो rhyming scheme है वो A B C B है। A पहला वाला A, then cage B, quiet C, because A is not matching with C, so A B C, and last rage is again it is rhyming with B. So here the rhyming scheme is A B C B, cage is rhyming with rage. Coming on to the next literary device, that is personification. तो टाइगर इज personified because the poet refers him as
ही, हम ही किसके लिए बोलते हैं, किसी पर्सन के लिए बोलते हैं। जनरली हम एनिमल्स के लिए इट यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे पोएट ने ही यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे टाइगर को एक पर्सन के फॉर्म में इमेजिन किया है। सो ये पर्सोनिफिकेशन इज देयर। मेटाफर, मेटाफर हियर टाइगर के जो पॉज हैं, जो पैर हैं, उसके कंपैरिजन। मेटाफर क्या है, एक तरह का कंपैरिजन है। किससे कंपेयर किया गया, एक वेलवेट शीट से, पैड ऑफ वेलवेट से कंपेयर किया गया। सो हियर ऑन पैड ऑफ वेलवेट, तो ये पैड ऑफ वेलवेट यानी पॉज, टाइगर के पॉज जो हैं वो एक वेलवेट से कंपेयर किया गया। देयरफॉर हियर द लिटरेरी डिवाइस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एन्जैबमेंट। एन्जैबमेंट मीन्स यहाँ पे सेंटेंस आपने देखा होगा, यहाँ पे किसी सेंटेंस में जो है कोई भी सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगली लाइन में पहुंच जा रहा है, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं है, तो एन्जैबमेंट है। इमेजरी, इमेजरी का मतलब हो गया पोएट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेजिन अबाउट द टाइगर। यहाँ पे कई कंडीशंस को इमेजिन किया है पोएट ने। सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टाइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो ये सारी चीज़ें जो एक इमेजिनेशन है, तो इसको, इस फिगर ऑफ स्पीच को आप इमेजरी कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स यानी यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड ज़्यादा आया है एस कॉन्सोनेंट का, तो ये हो स्टॉक, हिज, स्ट्राइप्स, तो एस का साउंड ज़्यादा है तो कॉन्सोनेंस हो गया। ऑन द सेम हैंड एजोनेंस भी है, एजोनेंस यहाँ पे वॉवेल साउंड ज़्यादा है, आई का साउंड ज़्यादा, इन हिज विविड स्ट्राइप, आई, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो ये यहाँ पे वॉवेल आई का साउंड ज़्यादा आया है, तो ये हो गया एजोनेंस। देन लास्ट इज ऑक्सीमोरॉन, यहाँ पे अपोजिट यूज़ हुआ है, क्वाइट भी है और रेज भी है, यानी कि शांत भी है गुस्सा भी है, तो अपोजिट मीनिंग वाले शब्द भी यूज़ हुए हैं, तो दिस इज ऑक्सीमोरॉन। So here the figure of speech of first stanza is clear, students. Now coming on to next stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Here same rhyming scheme, A, B, C, B. Grass is rhyming with pass. Okay. Second is enjambment. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि line continues without punctuation mark. Sliding through, then deer pass, so sliding through grass near the, here there is no punctuation mark. Okay. Then alliteration, sound P at the start of two words, plump pass, plump pass. Alliteration means repetition of sound, repetition of, here repetition of P sound is there, plump, ओके, प्लम्प है, प्लम्प डियर पास, तो प्लम्प पास जो है यहाँ पे ये एलिट्रेशन हो गया, पी साउंड रिपीट हो रहा है। इमेजरी, इमेजरी का है, यहाँ पे पोएट हैज ट्राइड टू क्रिएट इमेजिनेशन ऑफ टाइगर्स एक्टिविटीज, लर्किंग इन शैडो, ये एक एक्टिविटी है और इसको इमेजिन किया पोएट ने। सो हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज इमेजरी। देन कमिंग ऑन टू द थर्ड स्टैंजा, हियर यू विल सी he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Again rhyming scheme, A, B, C, B. Edge rhymes with village, edge rhymes with village, so A, B, C, B. Then enjambment, line continues to next line without punctuation mark. He should be snarling around houses at the jungle's edge, तो यहाँ पे कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, सो एन्जैबमेंट। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया यानी कि यूजिंग वर्ड्स विच डिनोट साउंड, किसी एक तरह का साउंड आ रहा उससे, किसी तरह के साउंड का वो एक आपको इफेक्ट दे रहा है, तो उसको आप ओनोमेटोपिया कहते हैं। स्नार्लिंग, यहाँ पे स्नार्लिंग जो हुआ यूज़ हुआ है, एक तरह का साउंड है जो ग्राउलिंग साउंड है, ठीक है। देन एजोनेंस, एजोनेंस का मतलब हो गया अगेन साउंड, वॉवेल साउंड, तो यहाँ पे ओ और आई वॉवेल साउंड ज़्यादा यूज़ हुआ है इस स्टैंजा में। शुड, अराउंड, हाउस, तो ओ साउंड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सिमिलरली बेरिंग, हिज, वाइट, हिज, तो यहाँ पे आई साउंड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। देन कमिंग ऑन टू कंसोनेंट्स, यूज ऑफ कंसोनेंट साउंड ज़्यादा है, एस साउंड ज़्यादा है, तो हिज, फैंग्स, अगेन हिज एंड क्लॉज, सो
his white fangs, his claws। तो इस लाइन में आप देख रहे हैं कि ज़्यादा एस साउंड का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हो गया कंसोनेंट्स। Then coming on to the next stanza, that is, but he locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। अगेन राइमिंग स्कीम ABCB है, bars, visitors यहाँ पे राइम हो रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन अगेन यहाँ पे टाइगर को ही के फॉर्म में रेफर किया गया है। हिज लुक लॉक्ड हो गया तो यहाँ पे उसको हिज, तो ये एक तरह का पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ हुआ, पर्सन के फॉर्म में उसको रेफर किया जा रहा है टाइगर को। देन एजोनेंस वॉवेल साउंड ई, ही लॉक्ड कॉन्क्रीट सेल, तो ये सब ई साउंड वॉवेल साउंड यूज़ हो रहा है तो एजोनेंस है। कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट एस साउंड, हिज स्ट्रेंथ बार्स, स एस साउंड ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो कॉन्सोनेंस हो गया यहाँ पे। देन एलिटरेशन अगेन रिपीटेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, सो साउंड ऑफ बी एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स बिहाइंड बार्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, तो बी जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो ये एलिटरेशन है। देन कमिंग ऑन टू लास्ट स्टैंजा, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। यहाँ पे राइमिंग स्कीम सेम, कार्स राइम्स विथ स्टार्स, दैट इज ABCB। एंजैबमेंट देख लीजिए, 3 lines continues to line 4 without any punctuation mark and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो दो लाइन 3 जो है तो एंड स्टेज विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो यहाँ पे 4th लाइन में पास हो रहा है 3rd लाइन लेकिन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो एंजैबमेंट हो गया। एलिट्रेशन है साउंड एच इन द स्टार्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स, ही हियर्स हो गया, एच साउंड रिपीट हो रहा है। एजोनेंस साउंड यूज ऑफ आई साउंड विथ हिज ब्रिलियंट, तो यहाँ पे आई का रिपीटेशन हो रहा है आई साउंड का, सो हियर इट इज एजोनेंस। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, द एंटायर पोएम वाज वेरी ब्यूटीफुल विथ अ ब्यूटीफुल मैसेज, important message given by the poet। I hope so the poem has been explained very clearly। So students, you like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you get notification for next video which is uploaded। Thank you students।